Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. So today we are going to start our fifth unit, that is last unit, which is application layer protocols. In this unit we will study different application level protocols such as DHCP, static and dynamic DHCP, email protocols, etc. So today's our topic is domain name server. It is also called as DNS. The course outcome of this unit is implement different application layer protocols. So we will start. So in the previous video we have studied about, in unit number 4, we have studied about TCP, that is transmission control protocol, flow control, how the flow is passed from source to the destination, that is routing of TCP packets, error controlling in TCP IP. So coming to today's topic, that is DNS. DNS is also called as domain name server. So the learning outcome will include the basic concept of domain namespace, that is DNS, and the working principle of DNS. POs mapped are PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, and 10. Today's topic, that is domain name server or domain namespace. तो बिफोर DNS एग्जिस्ट, तो क्या होता था उस कंडीशन में, व्हेन द DNS वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, one had to download a host file containing the host names and their corresponding IPs. तो DNS का मीनिंग बेसिकली जो हमको दिखता है, जैसे https sbi.com या https :/ उसके बाद www nitpoly.edu.in, तो ये हो गया हमारा डोमेन नेम स्पेस। तो HTTPS उसमें क्या है, उसमें है हमारा प्रोटोकॉल। उसके बाद www.aict.gov.in, तो AICT ये हमारा डोमेन नेम है, GOV क्या है, स्पेस ऑक्युपाई किया है हमारे डोमेन के ऊपर। तो व्हेन द DNS वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस, जब नहीं था तो हमको क्या करना पड़ता था, वी हैव टू डाउनलोड अ होस्ट फाइल containing the host names and their corresponding IP addresses। यानी होस्ट फाइल ये जनरली सिनारियो है बिफोर 1990s। तो उसके पहले हमको लोकल पोर्ट से या लोकल होस्ट से फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती थी, होस्ट फाइल्स प्लस देयर related IP addresses. But with the increased number of hosts of internet, the size of host file also increased. But जैसे जैसे इंटरनेट tremendously increase हुआ, number of usage was increasing and expanding greatly। तो उस टाइम पे हमको क्या डेवलप करना पड़ा या क्या इवॉल्व हुआ, this resulted in increased traffic on downloading these files। To solve this problem, the DNS system was introduced। तो अगर बहुत से डोमेन नेम हमको डाउनलोड करने का है या वो उनकी वेबसाइट्स हमको एक्सेस करने का है, तो हमको उसके होस्ट फाइल्स डाउनलोड करने पड़ती थी। अभी जितने नंबर ऑफ इंटरनेट ज़्यादा होंगे उतना ही ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि हर एक को अलग अलग होस्ट फाइल्स डाउनलोड करना था। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा है, डोमेन नेम सिस्टम। एक सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम था डोमेन नेम स्पेस और डोमेन नेम सर्वर। The domain name space or domain name system helps to resolve the host name to an address। ये क्या करेगा, DNS host name को resolve करेगा into individual or unique IP address। It uses a hierarchical or tree-like structure and distributed database of IP addresses and their associated name। डोमेन नेम स्पेस बेसिकली क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम है जो स्टोर करेगा होस्ट नेम्स को विद देयर करस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस। स्टोर कर रहा है, इसका मीनिंग है डेटाबेस है। जैसे gov.in है, तो gov.in में गवर्नमेंट की जितने भी वेबसाइट्स आएंगी उसके IP एड्रेसेस रहेंगे प्लस उसका होस्ट नेम। .com वाली जो वेबसाइट्स है उसमें उसके होस्ट नेम आएंगे प्लस उसके यूनिक IP एड्रेसेस। तो IP address, what is IP address? IP address is a unique
लॉजिकल एड्रेस असाइन टू अ मशीन ओवर द नेटवर्क। आईपी के बारे में हमने बहुत पढ़ चुके हैं इसके पहले। एन आईपी address exhibits the following properties. It is the unique address, 32-bit long. It consists of two components, network component and host component. ये हमने देखे हैं, network component identifies host and host identifies its individual or unique host. IP address is a 32-bit number. अभी IP address क्या है? 32-bit unique number. Whereas on the other hand, DNS are easy to remember by their names. नंबर को हम मेमोराइज उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर सकते एज कंपेयर टू यूनिक नेम। जैसे google.com है, google.com का एक यूनिक आईपी एड्रेस रहेगा वो साइट रिट्रीव करने के लिए। तो वो आईपी एड्रेस रिट्रीव करना याद रखना इजी है या नाम याद रखना इजी है? तो नो डाउट हम नेम्स को ज़्यादा इजी तरीके से रिमेम्बर कर सकेंगे। तो डीएनएस क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा इनटू टू पार्ट्स। एक रहेगा होस्ट नेम यानी जैसे www.google.com और www.google.com का एक यूनिक आईपी एड्रेस एसोसिएट रहेगा जिससे वो रिट्रीव करेगा फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट DNS is. For example, when we enter an email address, we always enter a symbolic string such as webmaster@abc.com. Now comes a URL, that is Uniform Resource Locator. URL refers to a web address which uniquely identifies a document over the network. Link, hyperlink या URL www.yahoo.com/index.html, इससे क्या ओपन होगा, उसका इंडेक्स पेज या होम पेज ओपन होगा। तो दिस डॉक्यूमेंट कैन बी अ वेब पेज, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द वेब। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूआरएल से ही स्पेसिफाई करेंगे हम कोई भी वेबसाइट का एड्रेस या रिलेटिव हाइपरलिंक्स और वेब लिंक्स। तो यूआरएल के ऊपर कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे हम, एक पर्टिकुलर वेब पेज पे। वो वेब पेज में कोई डॉक्यूमेंट रह सकता, इमेज रह सकती है, ऑडियो और एनीथिंग। तो यूआरएल are of two types, absolute URL and relative URL. Absolute URL is a complete address of a resource on the web. This complete address comprises of protocol use, server name, path name and file name. अभी two types of URL है हमारे पास, absolute यानी complete and relative। तो absolute में क्या होगा, इसका एग्जांपल है देखो http://www.abc.com/internettechnology/index.htm। तो http क्या है, उसमें प्रोटोकॉल है, abc.com is the server name, index.html is the file name। तो एब्सोल्यूट यूआरएल में पूरा कंप्लीट पाथ रहेगा जहां पे हमको एक्सेस करने का है। ऑन द कॉन्ट्ररी रिलेटिव यूआरएल में क्या देंगे, इट इज अ पार्शियल एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। अनलाइक एब्सोल्यूट यूआरएल द प्रोटोकॉल एंड सर्वर पार्ट आर ओमिटेड। अभी रिलेटिव यूआरएल में क्या रहेगा कि पार्शियल एड्रेस है वेब पेज का, द प्रोटोकॉल एंड सर्वर पार्ट आर ओमिटेड। इसका मीनिंग क्या होगा, HTTP नहीं रहेगा। अबव एग्जांपल में क्या करेंगे अपन, HTTP नहीं देंगे, सर्वर पार्ट abc.com नहीं देंगे और डायरेक्टली क्या स्पेसिफाई करेंगे, index.html। तो ये कब यूज कर सकते हैं हम, जब विद इन द वेबसाइट है, विद इन द सेम वेबसाइट है, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप करने का, तब अपन हम यूज करेंगे रिलेटिव यूआरएल। पर एक वेबसाइट से दूसरे किसी वेबसाइट के ऊपर हमको अगर जाने का है तब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सिर्फ एब्सोल्यूट यूआरएल। तो एब्सोल्यूट यूआरएल इज अ कंप्लीट पाथ कंप्राइजेस ऑफ प्रोटोकॉल, सर्वर नेम एंड वेब पेज
और द पाथ नेम और फाइल नेम, बट रिलेटिव यूआरएल में सिर्फ क्या रहेगा, फाइल नेम और पाथ नेम, और रिलेटिव यूआरएल हम विद इन द वेबसाइट ही यूज करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी एब्सोल्यूट यूआरएल हम यूज करेंगे रीडायरेक्ट करने के लिए किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर या दूसरे वेबसाइट के वेब पेज के ऊपर। तो दिस वाज यूआरएल। तो डीएनएस का आर्किटेक्चर किस टाइप से रहेगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहेगा। इट कंप्राइजेस ऑफ डोमेन नेम स्पेस, नेम सर्वर एंड इट्स रिलेटिव वेबसाइट्स। तो डोमेन नेम इज अ सिंबॉलिक स्ट्रिंग एसोसिएटेड विद एन आईपी एड्रेस। डोमेन नेम में क्या रह सकता है, www.google.com। तो गूगल क्या है, डोमेन नेम। देयर आर सेवरल domain names available, some of them are generic such as .com, .edu, .gov, .net। कंट्रीज के लिए भी रहेंगे। .in का मीनिंग होगा इंडिया से रिलेटेड, .au ऑस्ट्रेलिया, .za जाम्बिया, यूएस के लिए यूएस। डोमेन नेम स्पेस, द डोमेन नेम स्पेस रेफर्स अ हायरार्की इन द इंटरनेट नेमिंग सर्विस। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें अलग अलग जोन्स हम डिफाइन करेंगे। तो इस टाइप से सर्वर रहेगा es.com, .gov, .edu। तो ये जो पार्ट है दैट इज पर्टिकुलरली अ जोन, दिस इज अ जोन, इसको बोलेंगे हम जोन। एक पर्टिकुलर एंटिटी में या डोमेन नेम में फिर से उसको हायरार्किकली डिस्ट्रीब्यूट किए, तो दिस इज कॉल्ड एज जोन। ये कंप्लीट हमारा है डीएनएस, तो ये हो गया उसका रूट। तो डीएनएस क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस और उसका एसोसिएटेड नेम स्टोर करेंगे डॉट, जैसे .com में, तो .com ये डोमेन नेम हो गया, और उसके अंदर क्या रहेंगे mtghouse.com, pololane.com, .com। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डीएनएस। नेम सर्वर, तो नेम सर्वर contains the database of the particular website. The database contains various names and their corresponding IP addresses. Since it is not possible for a single server to maintain the complete database, therefore the information is distributed among many DNS servers. So types of DNS servers are name servers, root server, primary server and secondary server. What is root server? It is a top level server which consists of entire DNS tree. It does not contain the information about domains but delegates the authority to the other server. जैसे .com है, .com फिर से किस में जा रहा है, .com उसके अलग अलग पार्ट रहेंगे जैसे google.com, yahoo.com, rediff.com। तो दैट इज रूट सर्वर। प्राइमरी सर्वर, इट स्टोर्स अ फाइल अबाउट इट्स जोन। जैसे edu वाला पार्ट लास्ट स्लाइड में हमने देखे, edu में अलग अलग हमने हायरार्की बनाया कि edu में टेक्निकल से रिलेटेड है, नॉन टेक्निकल है, आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज जो भी है, तो दैट आर यूज इन दैट primary servers are used. It has an authority to create, maintain and update the zone file. Secondary servers क्या करेंगे, it transfers complete information about a zone from another server which may be zone to zone ट्रांसफर करने का है या DNS to DNS ट्रांसफर करने का, तो उस टाइम पे हम सेकेंडरी सर्वर्स को यूज करेंगे। तो दीज आर नेम सर्वर। नेम सर्वर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे डेटा अबाउट द पर्टिकुलर होस्ट नेम एंड देयर आईपी एड्रेसेस। तो 3 टाइप्स है, रूट सर्वर, उसके बाद प्राइमरी सर्वर और लास्ट इज सेकेंडरी सर्वर। नाउ कमिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल और ऑपरेशन ऑफ डीएनएस। तो डीएनएस क्या करता है बेसिकली, डीएनएस यानी क्या होगा, www.google.com, ये हो गया डोमेन नेम स्पेस। अभी इससे रिलेटेड एक यूनिक आईपी एड्रेस भी है जो इंटरनली हम रिट्रीव करेंगे। ये यूजर को विजिबल नहीं होगा बट इंटरनली वर्क कैसे करेगा, होस्ट नेम से रिट्रीव नहीं करते हम,
होस्ट नेम से एसोसिएटेड जो यूनिक आईपी एड्रेस है उसको हम रिट्रीव करेंगे। तो वही स्टेप दिया है। व्हेन वी टाइप www.abc.com into the browser, it asks the local DNS server for its IP address। क्या करेगा, जब भी हम टाइप करेंगे ब्राउजर के ऊपर तो लोकल DNS से हम गेट करेंगे उसका IP एड्रेस। हियर द लोकल DNS इज द ISP एट द एंड। ISP मीन्स इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो भी ISP एसोसिएटेड है तुम्हारे लोकल एरिया नेटवर्क से या तो तुम्हारे कनेक्टेड राउटर से, अगर हम वैन में कनेक्टेड है तो वो ISP उसका यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। व्हेन द local DNS does not find the IP address of the requested domain name, it forwards the request to the root DNS server and again inquires about IP address। अगर वो लोकल DNS को नहीं मिला तो वो उसके ऊपर के लेवल के ऊपर भेजेगा, that is the root DNS। अभी the root DNS contains all the database। ठीक है, रूट DNS के पास कंप्लीट डेटाबेस है। तो root DNS replies with the delegation that I do not know the IP address of www.abc.com but know the IP address of the DNS सर्वर। अभी ये रूट DNS क्या रिप्लाई करेगा इंटरनली कि abc.com का IP एड्रेस उसको पता नहीं है, पर abc.com जो DNS सर्वर के ऊपर स्टोर है उसका IP एड्रेस उसके पास है। तो फिर क्या करेगा, लोकल DNS आज द DNS द सेम क्वेश्चन, यानी फिर वो पूछेगा कि वो लोकल DNS का तुम मेरे को IP एड्रेस सेंड करो। देन द लोकल DNS सर्वर द सेम क्वेश्चन। नाउ द लोकल DNS सेंड्स द IP एड्रेस। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलेगा और लास्ट में जो रूट सर्वर है वो रिट्रीव करेगा फ्रॉम द वेरियस डोमेन नेम सर्वर कनेक्टेड टू इट और उसको वो रिप्लाई करके हमको वो साइट विजिबल कराएगा। तो इंटरनली इतना फास्ट ये वर्किंग होता है कि हमको पता भी नहीं चलता। जैसे ही हम google.com डालेंगे 1-2 सेकंड के अंदर ये सब प्रोसेस हो जाएगा। क्या करेगा, सबसे पहले लोकल DNS को भेजेगा। लोकल DNS के पास अगर वो नहीं है, कैश में नहीं है, तो वो उसको भेजेगा रूट DNS के पास। अभी रूट DNS के पास अगर वो बोलेगा कि मेरे पास ये वेबसाइट अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है पर उसका DNS का एड्रेस अवेलेबल है, तो वो DNS का एड्रेस वो भेजेगा लोकल DNS के पास। लोकल DNS उसको रिट्रीव करेगा और शो करेगा ऑन द ब्राउजर। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट आर एक्सप्लेन डोमेन DNS इन डिटेल। 6 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा। सो व्हाट वी हैव लर्नड टुडे, कंसेप्ट ऑफ डोमेन नेम स्पेस एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डोमेन नेम स्पेस। So thanks for watching the video. In the next video we will continue the next topic, that is topic number 5.2. So thanks for watching the video. Thank you.